Hello student, I welcome you all in this amazing sessions of chapter number 11। तो अपने को पता है कि एग्ज़ाम जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और स्टार्ट भी हो गए। एग्रीकल्चर वालों के कल से जो है वो अपन कह सकते हैं कि 10 तारीख से पहला एग्ज़ाम है इनका। तो चैप्टर नंबर 11 अपने करते हैं और चैप्टर नंबर 11 में ध्यान रखना इसमें ये जो नंबर कैरी करता है ये है 6 नंबर्स। नंबर कितने होंगे इस चैप्टर में? 6। चैप्टर का नेम क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो fertilizers. Organic manure and bio fertilizers. Now what's that? So अपने को पता है कि जो अपने फर्टिलाइजर्स जो खेत में यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और केमिकल मैन्योर जो अपने यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो सोइल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एरेशन उसमें प्रॉपर नहीं रहता, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा उसकी जो वाटर डिमांड होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और सोइल की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाती है और उसकी जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है वो भी नहीं रहती, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसके अलावा जो सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए अपने जो ऑर्गेनिक मैन्योर लेकर आते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑर्गेनिक मैन्योर मींस? ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का? मैन्योर इन विच मैन्योर विद लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो organism. So what is organic manure? Manure with living microorganism, and mainly it covers farmyard manure, farmyard manure, farmyard manure या इसको शॉर्ट में अपने FYM बोलेंगे, ध्यान रखना, farmyard manure. Next is green manure, green manure which is basically plant based manure. Next we can say vermicompost, vermicompost and nadeep compost as well. Nadeep compost or all type of composts are included in this. So next comes the classification of manure. Next comes the classification of manure. So there are mainly two types of manure. Organic manure or are of two types. Organic manure are of two types, or we could say three types, sorry, it is of three types. First is concentrated manure. Concentrated manure are those in which nutrients are high, nutrients are in high quantity, that's why less quantity is required, quantity required. Next we could say of like bulky manures. Next comes bulky manure. Bulky manure. Bulky manure name suggests we have to use these manure in bulk, or that's why nutrients is low. Nutrients are low, that's why more quantity is used. More quantity used. And third we could say of animal origin. Animal
origin. So these are the manure with animal origin, like dried blood, bone meal, basically the powder of bones, or when we crush the bones, that's called bone meal, or fish meal, crushed fish we could say. So these are the manures or classification of manure. Next comes the importance of manure. Importance of organic manure. So we can divide these importance in three categories or benefits. First one is physical benefits or physical importance. Second one is chemical, and third one is obviously biological. So these are of three kind. First one is physical. Let's talk about the physical importance or physical benefits of organic manure. First is it improves the soil structure. Soil structure improve. Second one, we could say when soil structure improves, aeration also improves. Aeration improve. When aeration improves, we could say water holding capacity also improves. Water holding capacity improves or increases. Next we talk about is soil erosion decreases. Soil erosion decreases. Next one is granular structure, or we could improve in this granular structure. And as we know that water holding capacity increased, aeration has also increased, and soil structure has improved. So due to this, growth of roots also increases. So these are some benefits or physical benefits of organic manure. Next comes the chemical benefits. Chemical importance or benefits. So what are these? Let's talk about it. First of all, it controls the pH. Means if our soil has higher pH, then it will lower the pH, and if the soil has lower pH, then it will increase it to maintain a certain level of pH. Second one is improve the saline and alkaline nature of soil. Saline and alkaline nature of soil. Next is quantity of carbon increases. Quantity of carbon in soil increases. Third one, we could say about higher CEC and buffering capacity.
and buffering capacity. Next one is it makes nutrients it makes nutrients available for plants. Okay, so these are some benefits of a chemical category or chemical benefits of organic manure. Next one comes the biological benefits, or we could say biological importance of organic manure. First one, obviously it increases the number of microorganism increases. First of all, number of microorganism increases. Second one, obviously, as we have talked about earlier, that aeration in soil increases, so we can say that reactivity of microorganism also increases. Third one, we could say that nitrogen fixation increases. Next, we could say that nitrification and ammonification also increases. And next, we could say that when reactivity and number of microorganism increases, obviously plant growth also increases, and due to these chemical organisms, the nutrients availability for plants also increases. Next, we talk about the difference between organic manure and fertilizers. Organic manure and fertilizers. Okay, so here we'll note down the organic manure, and on this side we are going to put fertilizers. So let's talk about it. First of all, organic manure are eco-friendly. Obviously, they are eco-friendly. They are not. Next, organic manure can be prepared at home. And in farm, but they can only be prepared in factories. Next, organic manure has no harmful effect not on soil and also not on humans, but it has some harmful effect. If not on man, then obviously on the soil. Next, organic manure gives all nutrients, provide all nutrients. It provides only one or two nutrients. Next,
it takes time. Obviously, organic manure takes time to release nutrients, and it can release instantly. It releases nutrients instantly instantly. Okay, so these are some we could say difference between the organic manure and fertilizer. We can even count some more, like organic manure improves the aeration, fertilizer does not. Organic manures controls the pH, fertilizer does not. Even it could worsen the pH situation in a particular soil, depending that which soil or which fertilizer are we using in type of soil. Now we can say that organic manure provides all essential nutrients, but fertilizer provides only one or two nutrients. But the quantity organic manure provides of nutrient are very less as compared to fertilizer. Means we can say that fertilizer provide more quantity of targeted nutrients, but organic manure provide only balanced nutrients to all. So these are some basic difference between organic manure and fertilizers. Next comes the farmyard manure. फार्म मैन्योर, या जिसको अपने आम भाषा में गोबर की खाद बोलते हैं, जो काउ डंग मैन्योर होती है वो भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपने FYM. So we all know that these farmyard manure are made, I think, from ancient times in our country. The main component of this farmyard manure are three components. First is obviously the dung, second comes the urine, and third comes the bedding. Now what is bedding? Bedding simply means the crop waste, and we can use anything apart in the bedding, like leaves of plants, branches of plants, crop waste, grass, obviously of dry quality. So these all can be used as bedding waste. Crop waste of leaves and plant branches, grass, or whatever you find. So these are the three components of farmyard manure. First is dung, second is urine, and third one is bedding. And we all know that in our traditional method of farmyard manure, we just use dung, and sometimes a little quantity of urine. We do not use bedding, and that's why we will read in upcoming topics that farmyard manure formation process in our country is a little bit defaulty or faulty, because the nutrients in this method are lost. And the main reason behind using the farmyard manure is to provide aeration. Provide aeration, because as we all know that farmyard manure is made by microorganism, and microorganism require oxygen or air for that matter to decompose these dung and urine to make manure. So they need oxygen or some other air, and if we do not provide them air, there won't be any microorganism working properly, and that's why the farmyard manure made through traditional method are not of proper quality or best quality. Next, we talk about the composition of farmyard manure. Composition. Now let's see what's the composition of farmyard manure. So first,
nitrogen is in the farmyard manure is roughly about 0.5 to 10%. Now keep in mind that in our book it is given like 0.5 to 10%, but I think it should be like 5 to 10%, or it could be 0.5 to 1.0%. but keep in mind we are going to write this down in our exam. Next comes the phosphorus. Now what is the quantity of phosphorus or composition of phosphorus? That is about 0.25 to 0.5%. and third one is obviously the potash or potassium. And what's the composition of potash or potassium in the soil or in the farmyard manure is around 0.5 to 1.0%. Now keep in mind these are the main or primary nutrients present in the farmyard manure, but it does not say that it does not have any other nutrient apart from these nutrients. Farmyard manure has all essential nutrients which plant would ever require. So keep in mind that farmyard manure will also have calcium, it will also have magnesium, it will also have like sulfur, iron, copper, zinc, manganese, and all of that. Next comes the method of farmyard preparation. Methods of farmyard manure preparation. Now here comes the three methods. Let's talk about them one by one. First one is obviously traditional method. Second one is known as trench method. And third we could say of pit method. Or it is also known as modified pit method. You would find in the books as well, and I'll suggest you to keep the book by your side when you are taking the class, so you could know or underline the important topic of this chapter. So first one is traditional method. As I mentioned you, traditional method, we just put the cow dung and urine on a ground and keep it open to let it be decomposed. But keep in mind that this method is very defaulty or faulty in this method, because in this method we lose nutrients. Why? Because these are just normal place or just plain surface. So when it is a rainy season, then with the drainage of water, nutrients also gets drained out. And second one, as we all know, nitrogen is a gas, and when it is put in open environment, nitrogen is evaporated in the form of ammonia. And third one is, as we all know, in this method there is no fix or we could say concrete base under this cow dung manure method. So in this method the seepage of nutrients also happens. Due to this nutrients, some of the nutrients goes in the ground of that particular soil, and it does not carry in that cow dung manure or farmyard manure, and that's why these methods are faulty. So सबसे पहले क्या देखेंगे अपने कि बारिश आ रही है, बारिश आने के कारण क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी में घुलकर कहाँ चले गए, वहां पर चले गए, घुले, डिजोल्व हो गए। वो डिजोल्व होने के बाद में वो पानी के साथ फ्लो होकर कहीं और चले गए। दूसरा कि उसका जो बेस होता है वो पक्का नहीं होता, कच्चा होता है, यानी दीज आर नॉट मेड विद कंक्रीट बेस। कंक्रीट बेस तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि जब बारिश आती है, हल्की फुल्की जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व होते हैं और उसी जगह पर उसी पर्टिकुलर सॉइल में नीचे बैठते जाते हैं। थर्ड वन की अगर अपनी बात करें तो इसमें क्या होता है, ओपन एनवायरनमेंट होता है, तो जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया गैस के रूप में क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये कुछ एक अपने कह सकते हैं मेथड है, या कुछ एक ऐसे डीमेरिट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। सेकेंड वन इज ट्रेंच मेथड। Now trench method we could say is better than traditional method. In trench method we use a trench of 60 by
1.5 by 3 meter, 1 meter length. So it means length of the trench is 60 meter, breadth of the trench is 1.5 meter, and breadth or width and depth of the trench is like 1 meter. So let's suppose we have this trench. So let's suppose this is trench we have with us, and what we do is we take two partition of this. Here 60 meter is length and 1.5 meter is breadth and 1 meter is depth. So what we do is we just put first half of this trench, and when first part of this trench is fully filled, then we stop putting dung in this area and we just cover it with the soil, and then we start putting dung in this. And when this one is fully filled or this one gets fully filled, by this time the dung we put in first section of this trench gets converted into manure, and we just take out all these manure and we then cover this with soil, and this process keeps repeating. So होता क्या है कि अपने दो हिस्से कर लिए उसके, एक इधर वाला हो गया एक इधर वाला हो गया। पहले इधर वाले हिस्से में जो अपने गोबर भर देंगे लगभग 6 महीने में या जितने में भी है वो भर दिया, और फिर इधर वाला हिस्सा क्या पड़ा रहेगा खाली। जब इधर वाला पूरा भर जाएगा तो उसको अपने कवर कर देंगे मिट्टी से, और जब इधर वाला हिस्सा जो होगा उसमें जो अपने गोबर मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये वाला पूरा भर जाएगा तब तक इधर वाले में खाद बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। फिर ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। अब इसमें एक बात ध्यान देना कि अगर अपने को इंक्रीज करनी है ना, इफ यू वांट टू लेट्स से वी हैव मोर एनिमल्स एंड दिस dimension would not fit according to us, then what we do is we can increase the length and breadth, but we should not change the depth. Depth should not be changed. Depth should not be changed. Should not be changed. So let's say we have more animals and this dimension won't work for us, so we are gonna do is we can increase the length or breadth, but we should keep the depth same of 1 meter, and in this way we can make the फार्म यार्ड में। सो जब ये पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, इसको अपने डोम की शेप दे देंगे। कौन सी शेप दे देंगे, डोम की शेप। डोम की शेप कौन सी होती है वो देखना, ये वाली शेप होती है, ये वाली शेप मानो आप एक तरह से, ये वाली इस तरह से शेप होती है। जैसे कि ये हो गया ट्रेंच। अब जैसे मान लो इसको मेरे को भरना है पूरा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये पूरा भर गया इसके बाद में इसको जो है इस तरह की शेप दे देंगे अपन, ये इस तरह से। तो ये इस तरह की शेप देने का फ़ायदा क्या होता है कि इस तरह की जब इसको शेप देंगे अपने, तो पानी जो इसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होगा या पानी उसके ऊपर कलेक्ट नहीं होगा, जिसके कारण अपने न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होगा। ठीक है। और इस मेथड से जो अपने बात करें, जो खाद बनने में या जो मैन्योर प्रिपेयर होने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 3 months। कितना लगता है, 3 months। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट कम्स दी modified pit method or pit method. Now keep in mind that process of making farmyard manure is almost same. All the difference comes in this method, in a different method is of a pit, or we could say of a trench. Now in pit method we take a pit of 3 by 2 by 1 meter, means 3 meter length, 2 meter breadth and 1 meter depth. So this is the dimension of these pit, and what we are going to do,
And let's suppose if we have more animals and this one pit won't work for us, so what we are going to do, we can increase the number of pits instead of increasing the number of length or breadth or depth. We should not change the dimension of this pit dimension should be remain same, but we can obviously increase the number of pits according to our desired quantity. And second one is pit should be made on high place, because we do not want to water get accumulated over the pit. And second one, it should be made under the shaded area. And the time in this method is taken around 5 to 6 months. 5 to 6 months. And if the soil is sandy soil, then we can make the brick pit, or we can just cover the pits with something like which will not the। और अगर अपने को पता होना कि मिट्टी जो है वो रेतीली यानी सैंडी सॉइल है, तो अपने पक्के मकान जो है या दीवारें वगैरह जो है वो पक्की कर सकते हैं। इवन जो बेस होता है, फर्श जो होता है, फ्लोर, वो भी पक्का कर सकते हैं। सो दीज आर दी 3 मेथड्स ऑफ मेकिंग फार्म यार्ड मैन्योर। नेक्स्ट कम्स दी identification of farmyard manure। Identification of fully prepared farmyard manure। So first one is it is of odorless, means no smell। Second one is it is all the same, मतलब कि जो प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुकी होगी ना फार्म यार्ड मैन्योर, उसमें कोई भी कंपोनेंट डिफरेंट नहीं होगा, सारे कंपोनेंट्स होंगे वो मिक्स हो चुके होंगे। थर्ड वन इज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इज light brown color, so these are the identifications of fully prepared farmyard manure। Now we all talked about the pit method, trench method, but how should they be filled? So here is the method of filling the tank, and keep in mind this method is only used for farmyard manure। So tank for farmyard manure means it is applicable in trench method and pit method, in both methods it is used। So first of all we are going to add bedding, next we are going to add dung and urine, next bedding, again cow dung and urine, and keep repeating the process। And when let's say the filling of this pits or trench comes above the surface of around 2 feet or 1.5 feet, then cover it with the soil and let it decompose for 3 months or 6 months, depending on which methods we are using, pit method or trench method। If we are using trench method, then it will take about 3 months, and if we are using pit method, then it will take around 5 to 6 months। So these are the method of filling the tank for farmyard manure। Next comes the uses, obviously how it should be used or how much quantity is to be used।
First, 10 to 15 tons per hectare for normal crops. But if we are using some vegetative crops like cucumber or else, then we should use 20 to 25 ton per hectare for vegetables and fruits. And next topic comes to our way is compost. That is compost. Keep in mind the compost are of three type. First one is indoor method, means compost can be made by three methods. First one is indoor method, second one is Bangalore method, and third one is Nadeep method. So what are these we are going to study, and in our subject only Nadeep compost is mentioned. And keep in mind that Nadeep compost question has been appeared in last year exam, so it is highly unlikely to appear it again. Now keep in mind that compost could be prepared from anything. You name it and compost can be made, but they should be biodegradable, obviously. So compost can be made from म्यूनिसिपल वेस्ट एज वेल एज फ्रॉम फार्म यार्ड, जो फार्म यार्ड वेस्ट होता है उससे भी, तो दोनों से बन सकता है। मीन्स जो सिटी का वेस्ट होता है या कोई टाउन्स वगैरह टाउनशिप है उसका कोई वेस्ट हो गया, या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका कोई वेस्ट हो गया, तो उससे कंपोस्ट बन सकता है। और फार्म यार्ड में जो क्रॉप का वेस्ट होता है उससे भी बन सकता है। तो कंपोस्ट कैन बी मेड फ्रॉम क्रॉप वेस्ट and it can also be made from city waste, or let's say municipal waste materials. Okay, so as I told you, in our subject Nadeep compost is only mentioned, so let's dive into the Nadeep compost. The method of Nadeep compost was developed by an uncle from Maharashtra, which was, and after which this method is known as Nadeep compost, as the name of that uncle was Nadeep. Generally he is known as Nadeep Kaka or Nadeep uncle. So on his name, this name has been suggested. So this is Nadeep compost. So what are the components of Nadeep compost? So let's see what are the components of Nadeep compost. First one is obviously waste material or bedding, we could say bedding. The required quantity for the given dimensions of Nadeep tank is around 1400 to 1500 kilogram. 1400 to 1500 kilogram. Next we need soil in dried condition and in powder form. Soil in powder form and dried. Now how much soil we are going to require is 170 and 50 kilogram. Third, we are going to require obviously dung, that is around 90 to 100 kg. So this much dung we are going to require, and obviously water. So these are the components of Nadeep compost, waste material of municipal or cities or towns.
or we could say bedding, that is around 1400 to 1500. Soil powdered and dried 750 kg, and dung 90 to 100 kg, and water as required. So the time taken in the Nadeb compost is around 90 to 120 days. 90 to 120 days, or we could say about around 3 to 4 months. And the composition of Nadeb compost are like nitrogen is 0.5 to 1.5%, phosphorus is like 0.5 to 0.9%, 0.5 to 0.9%, and potash or potassium is like 1.2 to 1.4%, 2 to 1.4%. So this is the composition of Nadeb compost, and keep eye on it. इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कंपोजिशन पूछा जा सकता है नाडेप कंपोस्ट का। नाडेप कंपोस्ट हो गया या फार्म यार्ड मैन्योर का जो मैंने कंपोजिशन लिखा है, तो कंपोजिशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर में अगर अपनी बात करें ना सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, या तो वर्मी कंपोस्ट होंगे या आगे आएंगे बायो फर्टिलाइजर्स। तो नाडेप से क्वेश्चन आए, पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है इसकी, बट आ सकता है। नेक्स्ट इज नाडेप टैंक। हाउ डू वी प्रिपेयर नाडेप टैंक? So we are going to talk about the formation of Nadeb tank, although it is not very much important, so but as it comes in chapter, but it could appear in exams accidentally, obviously. So we are going to study about it. So how do we prepare the Nadeb tank? So keep in mind the what are the dimensions of Nadeb tank. That is around 10 by 6 by 3, 10 by 6 by 3 feet, means 10 meter length, 6 meter width, and 3 meter height. Keep in mind that it is height. And the thickness of wall should be 9 inches. And first 2 layers are placed like this, and third one is like this one. Keep places between 2 bricks. The place of between 2 bricks should be around 7 inches. करना क्या है, पहले 2 लेयर आ गई नॉर्मल, तीसरी लेयर आएगी इस तरह से, भी इंटें से लगा रहे हैं अपने, बीच बीच में जगह छोड़नी है। ये जो जगह छोड़नी है वो कितनी छोड़नी है? 7 इंचेस। और जो इसकी जो चिनाई होती है वो मड में ही करते हैं अपने, किसमें करते हैं? मड में करते हैं। मेकिंग किससे करते हैं? इसकी मेकिंग जो होती है वो मड से करते हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो अपने किससे पक्की करते हैं? सीमेंट से पक्की करते हैं। यानी सीमेंट से उसकी अपने कह सकते हैं मेकिंग करते हैं, जिससे कि वो जो टॉप लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऐसा करते क्यों है अपने? क्योंकि इससे एक तो स्ट्रेंथ बढ़ती है वॉल की, और दूसरा ये कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जब नाडेप टैंक बनाते हैं तो ये जो इंटें वो ऐसे क्यों लगा रही है, ब्रिक्स जो इस तरह से क्यों अपने लगा रहे हैं? ध्यान देना कि जब इस तरह से ब्रिक्स लगाएंगे तो बीच में देखो एक कैविटी बनेगी, बीच में से क्या बनेगा? एक खाली जगह बनेगी। इस खाली जगह के कारण क्या होता है, उसमें एरेशन जो होता है वो प्रॉपरली होता रहता है, जिसके कारण नाडेप कंपोज होती है वो अच्छे से प्रिपेयर होती है। और एक और बात ध्यान देना कि अपने जो ये ब्रिक लगा रहे हैं, एक तो फर्स्ट में आएगा, देखो फर्स्ट लेयर ये होगी, सेकेंड ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी थर्ड लेयर, उसके बाद में 6th लेयर पर, फिर 9th लेयर पे, और फिर 12th लेयर पर। इस तरह से ये जो ब्रिक्स है अपने को लगानी है, जिसके बीच में जगह कितनी छोड़नी है? 7 इंचेस। और ये 1 by 1 ये जो चलते रहेंगे। तो ये जो है वो प्रिपरेशन होगी किसकी? नाडेप टैंक की। नेक्स्ट आता है फिलिंग ऑफ नाडेप टैंक। हाउ टू फिल दिस टैंक अप? फिलिंग ऑफ नाडेप टैंक। How we are going to fill this Nadeb tank? So first we add bedding. First layer is of bedding. It is around 6 inch thick layer, and total amount of bedding we are going to require is around 100 kg. Next layer is of slurry. Now slurry is, we could say, the solution of dung plus water.
dung plus water. How much dung and water we are going to require? Dung is around 4 to 5 kg, 4 to 5 kg, and water is around 125 to 150 kg. So we mix them both and make slurry. So first layer is bedding, second layer is of slurry, and third layer is of soil. Third layer is of. So the quantity or amount of soil should be around 50 to 60 kg. 50 to 60 kg, generally 4 to 5 baskets of soil. That's all. So, and we will keep repeating this process. First is bedding, second one is slurry, then soil, then again bedding, slurry, soil, bedding, slurry, soil, and we will keep repeating this process until the tank comes up around 1.5 feet. As we mentioned earlier, the height of the tank was around 3 feet. And how much we are going to raise the height of this filling is around 1.5 feet from the 3 feet. So total height from the ground should be around 4.5 feet. Now we will give it a dome shape, obviously. Now how will dome shape look like? Let's make one. This is how it is going to look. सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. बेसिकली करना क्या है कि जब टैंक पूरा भर गया और उसको अपने 1.5 फीट ऊपर तक रखना है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको इस तरह का शेप दे देंगे. इस तरह की शेप इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा. जो भी पानी आएगा गिरेगा, गिरते ही नीचे आ जाएगा. मेन शेप ये जो डोम शेप बोलते हैं, जिसको अपने देने का पर्पज यही होता है कि उसके ऊपर पानी जो बिल्कुल भी खड़ा ना रहे, क्योंकि बारिश वगैरह आती रहेगी तो पानी जो उसके ऊपर खड़ा रहेगा तो अपने ये कहेंगे कि जो अपने कह सकते हैं कि खाद जो प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं होगी. अब होता क्या है कि ये अपने फिल कर दिया नए डेप टैंक को. होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद में, लगभग 15 से 20 दिन के बाद में, क्योंकि इसमें अपने बेडिंग जो काफ़ी ज़्यादा मिक्स की है. पीछे जो अपने किए हैं ना, उसमें बेडिंग मिक्स ही नहीं की एक तरह से, आप ये मानो. क्योंकि देखो पीछे जो था उसमें बेडिंग जो बहुत थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है. तो क्या होता है कि जो टैंक होता है वो थोड़े टाइम के बाद थोड़ा नीचे बैठ जाता है. तो इसमें वही फिर दोबारा प्रोसेस वही करना है. क्या करना है कि पहले जो है वो बेडिंग और डालनी है, फिर उसके ऊपर वो जो स्लरी बनाई है वो डालनी है, फिर दोबारा से मिट्टी डालनी है, और यही दोबारा करेंगे जब तक कि वो दोबारा 1.5 फीट ऊपर तक ना आ जाए. फिर उसको दोबारा डोम शेप देंगे और क्या कर देंगे, उसको दोबारा बंद कर देंगे मिट्टी वगैरह से. नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपने वर्मी कंपोस्ट. अच्छा, इसका यूज़ कितना करना है, यूजेस कितने कितने होंगे इसके, वो देखो भाई. तो नॉर्मल जो अपने क्रॉप्स होती है उसमें वही 10 से 15 टन है, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर जो इसको यूज करना है. ठीक है, नॉर्मल क्रॉप्स के लिए. और अगर अपने वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो 20 से 25 टन पर हेक्टेयर. कब, जब वेजिटेबल्स वगैरह हो, अदरवाइज नॉर्मल जो है वो चल जाएगा इसमें. नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने वर्मी कंपोस्ट. क्या आता है, वर्मी कंपोस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बच्चों ध्यान देना. वर्मी कंपोस्ट से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इस बार, क्योंकि पिछली बार आया नहीं इसमें से क्वेश्चन, तो इस बार इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए. तो देखो क्या होता है अभी वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट सिंपली मीन्स कंपोस्ट बाय वर्मी अर्थवॉर्म्स. कंपोस्ट मेड बाय अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट. और वर्मी कंपोस्ट के अंदर ना 2-3 टर्म्स हैं, उनकी अपने को थोड़ी डेफिनेशन वगैरह पता होगी तो बढ़िया होगी. तो पहला इसके अंदर आता है अपने वर्मी कल्चर. क्या आता है, वर्मी कल्चर. सो क्या होता है वर्मी कल्चर, सेपरेशन ऑफ वर्मीज और अर्थवॉर्म्स, सेपरेशन ऑफ earthworms फ्रॉम. तो वर्मी कल्चर बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्शन
reproduction and care, or we could say management. Reproduction and management. Management of earthworms is known as vermiculture. Second one is vermicomposting. Now what is vermicomposting? This process is known as vermicomposting. Process of making vermicompost. Process of making vermicompost is known as vermicomposting. और अगर थोड़ा डिटेल में लिखना होता है इसलिए लिख देंगे कि वर्मीकम्पोस्ट जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जो वेस्ट को खाते हैं वो उनके डाइजेशन सिस्टम से होते हुए बाहर निकलता है, जो कि अपने एज ए मैन्योर यूज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। थर्ड वन इज वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन। नाउ व्हाट इज वर्मी कंजर्वेशन? सेपरेशन of earthworms from manure is known as vermi conservation. Separation of earthworms from manure is vermi conservation. And last one is vermicast. Now what is vermicast? We could say that eggs plus cocoon plus earthworms and plus non-decomposed material is known as वर्मीकास्ट। तो होता क्या है बेसिकली कि जब अपने खाद बनाते हैं तो अर्थवर्म्स जो होते हैं वो अपने को पता है रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में वो एग्स भी ले करते हैं, कोकून भी ले करते हैं, तो उसमें अर्थवर्म्स भी होते हैं, कोकून भी होते हैं, जो एग्स होते हैं वो भी होते हैं, कुछ एक नॉन डिकम्पोज मटेरियल भी होता है, क्योंकि सारा का सारा तो डिकम्पोज होता नहीं, थोड़ा बहुत हमेशा रहता है। तो वो जो लास्ट में रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपने वर्मीकास्ट। और ध्यान देना, जब एक बैच अपना तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट का, तो दूसरा बैच तैयार करने के लिए उसके अंदर जो अपने डाल रहे होते हैं ना अर्थवर्म्स होते हैं, वो एक्चुअल में वर्मीकास्ट ही होता है, जिसके अंदर कुछ एक एग्स होते हैं, कुछ एक कोकून होते हैं, कुछ एक अर्थवर्म्स होते हैं एंड कुछ एक जो है नॉन डिकम्पोज मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्मी कास्ट बोलते हैं। अब इंडिया में जो है अर्थवर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि यूज़ किए जाते हैं, और स्टेट वाइज भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अर्थवर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर अपने बात करें ना यहाँ पर जो कंपोजिशन है उसकी या न्यूट्रिएंट्स की, अगर अपनी बात करें न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स देखना इसमें बच्चों क्या होता है कि नाइट्रोजन जो इसके अंदर होता है वो होता है लगभग 1.75 to 2.25%, or we can say that 2.5%. Phosphorus is around 1.5 to 1.8%, 1.5 to 1.8%, and potash or potassium is around 1 to 1.5%. So this is important, most important we could say that न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट में उसका कंपोजिशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। और इसमें एक्टिनोमाइसिटीज होता है 8 टाइम्स, एक्टिनोमाइसिटीज एज कंपेयर टू फार्म यार्ड मैन्योर। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें 8 टाइम्स यानी 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं एज कम्पेयर टू फार्म यार्ड मैन्योर। एंड एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं डिकम्पोज करते हैं लिग्निन को या सेलुलोज जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ अर्थवर्म्स। टाइप ऑफ अर्थवर्म्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म। टाइप ऑफ earthworms, type of earthworms।
सो ध्यान रखना कि टोटल जो अर्थवॉर्म्स की स्पीसीज है वो होती है लगभग 2500 से 3000 यानी 2500 टू 3000 एंड अराउंड 350 जो है वो कहाँ पर होती है, इंडिया में अवेलेबल होती है। अब इसके जो है वो 3 कैटेगरी हैं। वन इज एपिजिक, सेकंड वन इज इंडोजिक एंड थर्ड वन इज डायोजिक। Now epizic is more centered to making compost। तो एपिजिक में देखना बच्चों कि ये जो होते हैं वो 1 मीटर डेप्थ तक जो है ये अपने कह सकते हैं कि सुरंग बनाते हैं या बिल जो होते हैं वो बनाते हैं। और ये जो होते हैं लेस सॉइल को खाते हैं और मोर वेस्ट को खाते हैं। It eats less soil and more waste. That's why they are, we could say, suitable for making compost. Here are the some of the species of these epizic. They are species of epizic are elongata. Next comes the Indozic makes 3 meter deep hole in the soil, so they are better for water drainage system and not for compost making. They eat more soil and less waste. Third one comes the dioic. As the name suggests, it holds the properties of both epizic and indozic. They can have depth of around 1 to 3 meter. Now here are the some species of epizic. They are elongata. Next is Pheretima. Next one is Perenips arvasicoli. And Icenia foetida. So these are the some species of epizic earthworm category. Now keep in mind that Icenia foetida is found in mainly Rajasthan, and that's why in Rajasthan Icenia foetida is used for making compost, and their length is around 3 to 4 inches and weight is around 0.5 gram, and they eat 90% waste and 10% soil. And keep in mind that on an average an earthworm gives around 2 to 3 cocoons in a week, and one cocoon gives around 3 to 4 eggs, and by this way in just 6 months of period one earthworm can reproduce around 250 earthworms in 6 months. So this is the classification and knowledge of earthworms. Next comes the method of preparation. ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो कैसे बनाए, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पहला, ये जो खाद है वो रेज्ड प्लेस होना चाहिए,
आसपास से थोड़ा क्या हो, ऊंचा उठा हो, ताकि बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो। दूसरा शेडेड एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शेडेड एरिया। और अगर मान लो छाया नहीं है वहाँ पर शेड, तो अपने को वो जो टिन वगैरह होते हैं वो लगा के करना चाहिए, क्योंकि जो डार्कनेस होती है, डार्कनेस में जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो बनेगी भी ज़्यादा। अगला अगर अपने बात करें तो लगभग मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर जो अपने को मेंटेन करके रखना है वो कितना रखना है, 30%। और उसके अलावा अगर अपने बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और जो अपने बेड्स होते हैं, वर्मी बेड्स होते हैं, मतलब क्यारियाँ जो होती है, वर्मी बेड, उनकी लेंथ और ब्रेड देखो, लेंथ तो देखो कितनी भी हो सकती है, मतलब जिस हिसाब का अपने पास इक्विपमेंट है, जिस हिसाब का अपने पास अरेंजमेंट है, उस हिसाब से लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो लेंथ है वो 40 से 50 फीट हो सकती है, 40 टू 50 फीट हो सकती है लेंथ। लेकिन अगर अपने बात करें ना विड्थ की, तो विड्थ ज़्यादा नहीं रखते। उसका कारण ये है कि विड्थ अगर ज़्यादा रखेंगे तो जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद में उसको निकालने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर विड्थ जो है वो पतली होगी तो उसको निकालने में क्या होता है, थोड़ा इजी रहता है। इसलिए जो विड्थ है वो 3 से 4 फीट ही रखते हैं, 3 से 4 फीट। नेक्स्ट इसमें आता है कि तो प्रोसेस में देखो, सबसे पहले जो है वो 3 इंच थिकनेस, 3 इंच की लेयर आती है किसकी, बेडिंग की। इसकी लेयर आती है 3 इंच थिकनेस आती है किसकी, बेडिंग की। उसके बाद में उसके अंदर ऐड करते हैं अपने वाटर, मतलब स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल। नेक्स्ट 3 इंच बेडिंग हो गया। उसके बाद में दूसरा आता है इसमें, वो आता है 2 इंच, इसमें आता है डंग। 2 इंच क्या आता है, काव डंग या जो भी एनिमल हो उसका जो है वो डंग इसमें आता है 2 इंच थिकनेस। तो इसमें भी साथ में क्या किया जाता है, वाटर स्प्रिंकल किया जाता है, वाटर स्प्रिंकल। और सबसे लास्ट में जो इसमें ऊपर आता है वो आते हैं वर्मी कास्ट। क्या आता है, वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट इन द सेंस वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट प्लस कोकून प्लस एग्स जो होते हैं उसके, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। वर्मी कम कहने का मतलब कि पहले जो है बेडिंग आएगी, तो उसके बाद में काउडंग हो गया, और फिर उसके बाद में आएंगे वर्मी कम, जो वर्मी कल्चर होता है वो वाला इसमें आएगा। और जिसको वर्मी कास्ट भी आप कह सकते हैं। इसमें मेनली जो होता है वो होता है अर्थवॉर्म्स, सॉरी अर्थवॉर्म्स आएगा, वर्मी का कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट अपने तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थवॉर्म्स आएगा, सॉरी ये यहाँ पर क्या आएगा, अर्थवॉर्म्स। ठीक, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, हाँ अर्थवॉर्म्स आएंगे, साथ में कोकून आएगा और साथ में क्या आएंगे, एग्स आएंगे। ये रख दिया। अब उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस, फिर 3 इंच थिकनेस की जो है वो बेडिंग, थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करेंगे, फिर 2 इंच जो है वो क्या आएगा, काउडंग हो गया, फिर उस पर भी वाटर स्प्रिंकल, और फिर यही सेम वर्मी कास्ट जो है इस पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जिसकी अपने को हाइट करनी है, मतलब इसमें अपने जैसे कि बताया कि कोई टैंक वगैरह तो बनाना नहीं है, नॉर्मल जो बेड्स होते हैं, क्यारीज होती है वही रखनी है, उसके ऊपर रख दिया। और फिर अपने जो हाइट रेज करेंगे, मतलब कितने ऊंचे तक अपने जो ढेर बना सकते हैं, होड़ जो होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है। तो ये ध्यान देना आप, टोटल हाइट जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1.5 फीट। ध्यान देना कि जो अपने ये ऐड करें ना, 3 इंच बेडिंग होगी, 2 इंच डंग हो गया, फिर वर्मी कास्ट यानी अर्थवॉर्म्स, कोकून वगैरह हो गए। ये बार बार प्रोसेस अपने तब तक रिपीट करना है जब तक कि जो वो जो ढेर है या जो होड़ जो है उसकी हाइट जो है वो 1.5 फीट ना हो जाए। 1.5 फीट जैसी हाइट होगी उसको क्या करेंगे, रोक देंगे, और उसके बाद में उसको कवर कर देंगे, किससे, कवर विद जूट बैग्स। जूट बैग्स मतलब जो बोरी होती है ना, आम भाषा में जिसको बोलते हैं, उससे कवर कर देंगे। और साथ में इसके ऊपर जो अगर मान लो वो नहीं मिल रही अपनी, तो कोई भी जो इवन बेडिंग जो होती है उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी कंटिन्यूस क्या करना है अपने को, वाटर स्प्रिंकल करना है, वाटर स्प्रिंकल अपने को करते रहना। अब एक बात इसमें ध्यान देना कि
ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसको बनने में लगभग कितना टाइम लगता है? इसको बनने में जो टाइम लगता है वो लगता है लगभग 60 दिन। 60 दिन। तो 60 दिनों में ये बनकर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब एक बात ध्यान देना कि जब खाद पूरी तरह से बन जाती है, खाद जो होती है पूरी तरह से बन जाती है, तो अपने पानी का जो स्प्रिंकलिंग है वो बंद कर देते हैं, पानी छिड़कना बंद कर देते हैं। और ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि जैसे ही पानी छिड़कना बंद करेंगे या पानी स्प्रिंकल करना अपने बंद कर देंगे तो ऊपर वाली लेयर क्या होगी, सूख जाएगी, और नीचे वाली लेयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। तो जो वर्मी कंपोस्ट बनने ऊपर तो रहेगी वर्मी कंपोस्ट, और नीचे क्या होगा कि जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो लोअर लेवल्स में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ऊपर से वर्मी कंपोस्ट को इजिली अलग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि जब वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर हो जाती है तो पानी स्प्रिंकल करना बंद क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब पानी स्प्रिंकल करना बंद करेंगे तो ऊपर वाली लेयर से जो अर्थ वॉर्म्स है वो लोअर लेयर्स में चले जाएंगे, जिसके कारण अपने जो कंपोस्ट है वो इजीली अलग कर सकते हैं। नीचे जो रह गया उसको दोबारा इकट्ठा करेंगे, वो फिर क्या रह गया, वर्मी कास्ट रह गया, उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम यूज कर लिया जाएगा। आगे कुछ बेनिफिट्स हैं, तो देखो इसमें नॉर्मल से बेनिफिट्स हैं वही कि अर्थ में जो अपने सॉइल होती है, सॉइल में एरेशन अच्छा करता है, स्ट्रक्चर अच्छी बनाता है, जो इसके कारण प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। इसमें नॉर्मल फार्म यार्ड मैन्योर के कंपैरिजन में 8 टाइम्स जो होते हैं वो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। इसके अलावा ये कई सारे जो है हार्मोन्स भी रिलीज करता है। अब ये ध्यान देना कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कंपोस्ट में कई सारे हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे पहला उसमें आता है ऑक्सिन, क्या आता है, ऑक्सिन। दूसरा इसमें आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो ये रिलीज करते हैं। उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो वर्मी कंपोस्ट के कारण क्या होता है कि अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो ये कुछ एक इसके बेनिफिट्स हैं। आगे है यूजेस। नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि यूजेस क्या क्या है। तो ध्यान रखना कि यूजेस इसमें 3 तरह से, एक जैसे नॉर्मल अपने फार्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब खेत तैयार कर रहे हैं। दूसरा इसमें आता है ये अपने कोई जो है वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तीसरा आता है इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। तो अगर अपने को फार्म प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अगर अपने को करना है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो यूज़ करनी है अपने को 2.5 to 3 टन। ये कोई क्रॉप नहीं है, सीधा खेत में अगर अपने यूज़ कर रहे हैं तो कितना करना है, 2.5 to 3 टन पर हेक्टेयर। सेकंड इसके अंदर आता है अपने देखना फार्म, ये तो हो गया फार्म। दूसरा आ गया अपने क्रॉप्स के लिए, जो दूसरी क्रॉप्स होती है वीट वगैरह, उसके लिए जो इसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है लगभग 5 to 6 टन, 5 to 6 टन पर हेक्टेयर। और थर्ड जो इसमें आता है वो आ जाता है वेजिटेबल्स वगैरह की जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए। तो वेजिटेबल वगैरह की जो क्रॉप्स होती है उसके लिए जो इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहती है वो रहती है 10 to 12 टन पर हेक्टेयर, 10 to 12 tons per hectare. So this is the required quantity for different type of category। मतलब नॉर्मल अपने जैसे कई बार होता है ना, खेत तैयार करना होता है अपने को, तो ये इसमें इतनी क्वांटिटी हो गई। अगर कोई क्रॉप है जैसे वीट वगैरह हो गई तो वहाँ पर ये हो गया। और अगर अपने कोई वेजिटेबल्स है या कोई फ्रूट्स हैं तब अपने को इतनी क्वांटिटी इसकी यूज करनी होगी। और उसके अलावा ध्यान देना कि अपने जो नेक्स्ट जो इसमें क्रॉप वाइज जो इसकी क्वांटिटी दे रखी है, जैसे जो अपने लेग्यूम्स होती है उसके लिए कितना यूज़ करना है, जो स्पाइसेस होते हैं उसके लिए कितनी यूज़ करनी है, तो आप देख लेना। बाकी चांसेस कम है कि यहाँ से कुछ आए, और आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन हो सकता है आ यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर जो अपने टॉपिक आता है वो आता है जैव फर्टिलाइजर। उससे पहले एक और बात ध्यान देना, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ना, वर्मी कंपोस्ट ये ऐसा नहीं है कि खड़ी फसल में अपने यूज करें। तो बेस्ट ये तब रहेगा जब अपने इसको फसल की जब हार्वेस्ट जो अपने जब अपने को पता है कि फसल को जो अपने बोने जा रहे हैं या फसल की शोइंग स्टार्ट होने वाली है, तो उससे जस्ट पहले अगर इसका यूज करें तो ये क्या रहता है, मोस्ट बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स, अब क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स? सिंपली नेम सजेस्ट करें, फर्टिलाइजर्स मतलब जो सोइल को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं या सोइल को क्या बना रहे हैं, फर्टाइल बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। और बायो फर्टिलाइजर इन द सेंस की जो बायोलॉजिकल वेज है या बायोलॉजिकल
तरीके से जो बने होंगे। मेनली इसमें क्या होता है, कुछ एक तो कल्चर होते हैं और कुछ एक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली वही होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गया, उनका फिक्सेशन करते हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें वन और मोर देन वन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, या एनवायरमेंटल फास्फोरस है उसका फिक्सेशन करते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स की जो दो कैटेगरीज है, ध्यान देना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक तो होता है नाइट्रोजन स्टेबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स, स्टेबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन स्टेबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स। और सेकंड इसमें आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस स्टेबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स। अब ये होते क्या क्या हैं वो देखो। सबसे पहले बात करें अगर अपने नाइट्रोजन वाले की, तो इसके अंदर 5 आते हैं। कितने आते हैं बच्चों, 5। पहला इसमें आता है राइजोबियम, क्या आता है, राइजोबियम। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम। फोर्थ इसके अंदर जो आता है वो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और फिफ्थ जो इसमें आता है वो आता है एजोला। और वहीं अगर अपने बात करें यहाँ पर फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, तो इसके अंदर मेनली 2 हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो इसमें आता है माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर स्कूलर माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो ये 2 है। तो इसमें ध्यान देना कि अपने पास जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसकी 2 कैटेगरी हैं। पहला तो ये हो गया, ये वाला नाइट्रोजन स्टेबलाइजिंग फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग फर्टिलाइजर। इसको ध्यान रखना, नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, NSM। इसी तरह ये वाले जो है इसको फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान देना कि ये वाले जो 2 हैं, कौन कौन से, ये 2 हैं, ये तो है प्लांट बेस्ड, मतलब एक तरह से प्लांट होते हैं ये, ठीक है। और ये 3 क्या हैं, कल्चर बेस्ड, इनका पाउडर्स आता है वो बेस्ड होता है। इसी तरह ये वाले जो 2 हैं वो भी क्या हैं, कल्चर बेस्ड होते हैं। इसीलिए इन दोनों को यूज करने का जो मेथड होता है वो भी क्या रहता है, सेम। और इन दोनों को यूज करने का मेथड क्या रहता है, अलग अलग। देखना ध्यान से कि इन दोनों को यूज करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। तो इसमें ध्यान देना ये बात कि ये वाले जो मैंने लिखे हैं ना, कल्चर कल्चर जो लिखा है मैंने, इनको यूज करने का मेथड सेम है, कि कैटेगरी इनकी जरूर अलग अलग है, लेकिन जो इनको यूज करने का, ये इनको जो अप्लाई करने का जो मेथड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गए इसमें बायो फर्टिलाइजर्स। सो अब अपने जो इनके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले आएंगे इसमें राइजोबियम, राइजोबियम। तो राइजोबियम ध्यान रखना, राइजोबियम जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है
राइजोबियसी फैमिली से। दूसरा अगर अपनी बात करें तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए बेटर होता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए ये क्या होता है, बेटर होता है। अगर अपने बात करें इसमें इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, राइजोबियम मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सेंस ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में प्लांट जो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर अपने बात करें इसकी क्वांटिटी की तो ध्यान देना कि राइजोबियम जो होता है वो अराउंड 50 to 100 kg, 50 to 100 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। और ये ऑल टाइप क्रॉप्स में यूज किया जा सकता है। बेनिफिशियल फॉर ऑल क्रॉप्स, बेनिफिशियल फॉर ऑल क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स होती है उसके लिए क्या होता है ये बेटर होता है। और नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो ये जो अपने एसिडिक और बेसिक जो नेचर होता है, एसिडिक एंड बेसिक इफेक्ट रिमूव्स, कि ये एसिडिक और बेसिक इफेक्ट जो होता है उसको भी क्या करता है, रिमूव कर देता है किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में से। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है राइजोबियम की और इतना ही अपने को मेनली इसमें लिखना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें जो कुछ एक वेराइटीज दे रखी है राइजोबियम की जो अलग अलग क्रॉप्स के लिए यूज होती है, वो आप एक बार जाओ देख लेना इसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आए, पर राइजोबियम में अगर अपन इतना लिखाते हैं तो बहुत होता है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है अपने एजोटोबैक्टर। सेम ये भी कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। जैसा कि अपने शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन किया था तब भी मैंने कहा था कि ये क्या होता है, एजोटोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सेकंड अगर अपने देखें इसमें तो एजोटोबैक्टर जो होता है एजोटोबैक्टीरियेसी, एजोटो फैमिली से बिलोंग करता है। एजोटोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसका यूज अपने वीट, बार्ले, मेज जैसी जो क्रॉप्स होती है उसमें कर सकते हैं। वहीं अगर अपने बात करें इसमें क्वांटिटी की तो ये अराउंड 10 to 20 kg, 10 to 20 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो ध्यान देना कि ये जो एजोटोबैक्टर होता है वो ग्रोथ रेगुलेटर्स भी प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तो ये हो गया एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आता है एजोस्प्रिलम। क्या आता है बच्चों, एजोस्प्रिलम। देखो भाई क्या होता है एजोस्प्रिलम, तो एजोस्प्रिलम भी मेनली क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इससे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर अपने बात करें इसकी क्वांटिटी की, ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, तो ध्यान रखना 15 to 30 kg, 15 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये जो एजोस्प्रिलम होता है ये बिलोंग करता है स्पिरिलिएसी फैमिली से, स्पिरिलिएसी फैमिली से, इस फैमिली से बिलोंग करता है ये, स्पिरिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसकी प्रेजेंस में ना प्लांट्स का जो कलर होता है, प्लांट कलर जो होता है वो डीप ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीप ग्रीन। और उसके अलावा अगर अपन देखें इसमें तो ये क्या होता है कि माइक्रोराइजल जो कि अपने आगे आएगा, ये इंक्रीज करता है क्या,
इंक्रीजेज माइकोराइजल इन्फेक्शन। इंक्रीज माइक्रो, अब इन्फेक्शन नाम सुन के ये मत सोच सकते हो ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ होती है। एक्चुअल में माइक्रोराइजल जो होता है वो फास्फोरस फिक्सेशन को इंक्रीज करता है या फास्फोरस फिक्सेशन का काम करता है। उसके अलावा अगर अपन देखें ना तो ये ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स, या अपने ये कह सकते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स भी रिलीज करता है। कौन से? एक होता है GA3, या रिलीज करता है GA3, और दूसरा करता है IIA, इंडोल एसिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये दो ऐसे हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया, एजोस्प्रिलम के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आता है मेथड ऑफ यूजेस। मेथड ऑफ यूजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स देखो भाई क्या होते हैं, 4 मेथड होते हैं मेनली इसमें। पहला इसके अंदर आता है अपने सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट। दूसरा इसके अंदर अगर अपने बात करें तो वो आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट। तीसरा अगर अपने बात इसमें करें तो वो होता है रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट। और फोर्थ अगर इसमें देखें अपने तो वो होता है सीडलिंग ट्रीटमेंट। देखो भाई क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपने सीड ट्रीटमेंट की। तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखो, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट ध्यान देना, सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है अपने को जो सीड्स होते हैं उन्हीं को ट्रीट करते हैं बायोफर्टिलाइजर्स से। सबसे पहले क्या किया जाता है, लगभग 1.5 टू 2.5 लीटर क्या लिया जाता है, वाटर, और उसके अंदर अपने जो है वो ऐड करते हैं जगेरी मतलब गुड़ जो होता है, और उसके बाद में इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। मतलब गर्म करेंगे इसको ऑब्वियसली, इसको अपने हीट देंगे जिसके कारण क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे ही बना इसके अंदर अपने क्या ऐड कर देंगे, जो अपना कल्चर है, कल्चर इन द सेंस कि जो अपने एजेटोबैक्टर है या एजोस्पिलम है या राइजोबियम वगैरह है वो, तो कल्चर ऐड कर दिया। कल्चर ऐड करने के बाद में ये एक तरह से एक और जो है वो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करेंगे, सीड्स ऐड करेंगे। सीड ऐड कर दिया, उसके बाद में सीड्स को अच्छे से कोट करेंगे, सीड्स कोटेड विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपने, सीड्स कोटेड प्रॉपरली विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से प्रॉपरली क्या कर लिया, इन सीड्स को कोट कर लिया, और फिर इनको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे मतलब सुखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर मेथड। अब इसमें होता क्या है कि यूज क्या करना है और कितना करना है वो देखना, कि लगभग क्या होता है ना, 200 ग्राम राइजोबियम जो होता है, 200 ग्राम राइजोबियम जो होता है वो बेनिफिशियल होता है किसके लिए, लगभग अपने कह सकते हैं 10 से 15 केजी लेग्यूमिनस के लिए, 10 से 15 केजी सीड्स के लिए, और 10 टू 15 केजी सीड्स। मतलब अगर अपने को लग रहा है ना 10 से 15 केजी अपने को सीड ट्रीट करने हैं तो 200 ग्राम राइजोबियम का जो कल्चर है वो ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें देखना अपने जो जगरी है उसकी क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफाई नहीं की है, क्योंकि वो क्वांटिटी जो है हर एक के लिए अलग अलग होती है। देखो कैसे, मैं इसको यहाँ अलग लिख देता हूँ भी, जगेरी जो है वो कितनी ऐड करनी है डिपेंडिंग की कौन से अपने पास क्रॉप है। तो जगेरी की क्वांटिटी जो है वो देखो क्या होगी,
तो जगरी की क्वांटिटी पहले देखना है इसमें जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, तो मूंग हो गए, मूंग बीन्स जिसको बोल सकते हो आप, मूंग हो गया, उड़द हो गया और चावल वगैरह जो हो गया, उसमें जो जगरी की क्वांटिटी ऐड करनी है अपने को, वो करनी है लगभग 250 ग्राम प्लस 1 लीटर वाटर। ठीक है। दूसरा आता है इसमें अरहर यानी पिजन बीन्स, पिजन बीन। तो इसमें ध्यान देना जो अपने को जगरी ऐड करनी है वो कितनी करनी है, 300 ग्राम, और जो इसके अंदर वाटर ऐड करना है वो कितना ऐड करना है, 1.5 लीटर। थर्ड अगर अपन इसमें देखते हैं तो वो आता है चना, मूंगफली और सोयाबीन, यानी सोयाबीन, ग्राउंडनट और जो ग्राम्स होते हैं, तो सोयाबीन, ग्राम एंड जो नट्स वगैरह होते हैं, उसमें कितना यूज़ करना है अपने को, जगरी, जगरी यूज़ करना है वो करना लगभग 300 ग्राम, और वाटर जो ऐड करना है वो कितना करना है, 2.5 लीटर। तो ये जो है वो क्वांटिटी है जो स्पेसिफाई कर रखी है, क्योंकि अपने यहाँ पे सीधा ही लिखा था 1.5 to 2.5 लीटर वाटर। तो ये वाटर जो है वो एवरेज दे रखा है इतने से इतना, और जगरी जो है वो डिपेंडिंग कि अपने कौन सी क्रॉप्स के लिए यूज़ करें वो अलग अलग हो सकता है। अब ये तो हो गया सीड ट्रीटमेंट। अगला इसके अंदर जो आता है वो आता है सॉइल ट्रीटमेंट। तो देखो सॉइल ट्रीटमेंट कैसे होगा। सॉइल ट्रीटमेंट बिल्कुल इजी है। क्या करना है अपने को, देखो 2 to 3 kg कल्चर, 2 to 3 kg कल्चर, और ये ऐड करना है किसमें, 50 ग्राम सॉइल में, 50 किलोग्राम, सॉरी ग्राम में, किलोग्राम सॉइल। ये मिक्सचर हो गया, और उसके बाद में इसको स्प्रिंकल कर देना है, स्प्रिंकल इन दी फील्ड, स्प्रिंकल एंड मिक्स इन दी फील्ड। ठीक है, ये हो गया अपने स्प्रिंकल करके फील्ड के अंदर मिक्स कर देना, ये हो गया सॉइल ट्रीटमेंट। इतना ही होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट आता है अपने रूट ट्रीटमेंट। क्या आता है, रूट ट्रीटमेंट। तो रूट ट्रीटमेंट में देखना बच्चों क्या होता है, 1 kg कल्चर लेना है अपने को, कल्चर, और उसके अंदर उसको ऐड करना है किसके अंदर, 40 to 50 लीटर ऑफ वाटर, 40 to 50 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया। ये एक तरह से अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें रूट्स ट्रीटेड विद दिस, रूट्स क्रॉप, रूट क्रॉप्स आर treated with this solution, with solution कितनी देर, 10 मिनट्स। तो बेसिकली रूट क्रॉप्स या इसको ट्यूबर भी कह सकते हैं अपन, ट्यूबर ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट या इसको ट्यूबर ट्रीटमेंट भी कहा जा सकता है। ट्यूबर ट्रीटमेंट मतलब ऐसी फसलें जिसमें, ऐसी क्रॉप्स जिसमें कि रूट्स होती है वो प्लांट की जैसे जाती है, जैसे आलू हो गया यानी पोटैटो जो होते हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें गार्लिक हो गया, शुगर केन वगैरह हो गए, इन सारों में जो है ट्यूबर्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस लगाए जाते हैं। तो इसी के लिए ये रूट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है अपने सीडलिंग ट्रीटमेंट। सीडलिंग ट्रीटमेंट। अब सीडलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनकी सीडलिंग्स यूज़ की जाती है, जिसको अपने आम भाषा में हो सकता है कभी सुना हुआ आपने, पंजीरी भी बोला जाता है। जैसे कि व्हीट हो गया, उसकी सीडलिंग्स यूज़ होती है। इसी तरह जो टमाटर के जो टोमेटोज़ के जो पौधे होते हैं उसकी भी सीडलिंग यूज़ की जाती है, या जो अपन कह सकते हैं अनियंस जो होते हैं उसकी भी सीडलिंग्स यूज़ की जाती है। तो उसी के लिए है ये सीडलिंग ट्रीटमेंट। इसमें भी क्या करना है आपको, 4 to 5 पैकेट्स ऑफ कल्चर, पैकेट कल्चर। अब देखना इसमें कि एक पैकेट में लगभग होता है 300 ग्राम, तो उसके हिसाब से अपने को यूज़ करना है जिस हिसाब से अपने को रिक्वायरमेंट है।
4 to 5 पैकेट ऑफ कल्चर प्लस इसके अंदर ऐड करना है 10 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, वो सॉल्यूशन बन गया। फिर उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड फॉर ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स, 10 to, और फिर क्या होगा, प्लांटेड, फिर उसको प्लांट कर देंगे अपने। तो ये होता है तरीका ट्रीटमेंट का। अब ये ध्यान देना कि ये जो मेथड बताया मैंने ये चार मेथड एजोस्पेरिलम, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, उन तीन में यूज होंगे। उसके अलावा क्या होगा, जो माइकोराइजा और वस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा उसमें भी यूज होंगे। तो ये 500 में ये सेम मेथड यूज होगा। बाकी जो दो रह गए ना अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, अब अपने बात करते हैं उनकी। पहला उसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, साइनो बैक्टीरिया, इस नाम से जानते हैं इसको, साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये 15 to 53 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है पर हेक्टेयर, फिक्सेशन पर हेक्टेयर कर सकता है। और इसमें कुछ एक जो होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA। उसके अलावा इसमें होता है ऑक्सिन, उसके अलावा होता है इसमें जिब्रेलिन, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें अगर अपने बात करें तो वो देखो क्या होता है, इसकी कुछ एक स्पीसीज है जो कि अपने को ध्यान में रखनी है। पहला इसके अंदर आता है एनाबिना, एनाबिना, नोस्टॉक और साइटोनिया और आसिलेटोरिया, ये कुछ एक इसकी स्पीसीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो ये मोटी मोटी बातें हैं किसके बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। अब अगर अपने बात करें इसके यूजेस कैसे होगा इसका, वो देखो, इसका यूज अपने जो करते हैं आफ्टर 7 days ऑफ प्लांटिंग, आफ्टर 7 days ऑफ प्लांटेशन, आफ्टर 7 days ऑफ प्लांटेशन इसका यूज किया जाता है। इसमें 8 to 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, अगर इतना नहीं होगा तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 8 to 12 kg पर हेक्टेयर। ध्यान रखना ये वो क्वांटिटी है जो अपने को ऐड करनी है यूज करते टाइम, और ये वो क्वांटिटी थी जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना। और कल्चर जैसे अपने ऐड कर दिया और उसके बाद में इसमें थोड़े दिनों तक पानी पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, यूजेज हो गया। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं तो वो आता है एजोला। क्या आता है बच्चों, एजोला। एजोला जो है वो पहले चाइना एंड वियतनाम में यूज होता था। कहाँ यूज होता था, वियतनाम में। और अगर अपनी बात करें कि एजोला किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना एजोला बिलोंग करता है एजोलिएसी से, एजोलिएसी, ठीक है, एजोलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इंडिया में जो इसकी वैरायटी होती है, इंडिया में, तो इंडिया में जो इसकी वैरायटी होती है वो होती है एजोला पिनाटा। कौन सी होती है, एजोला पिनाटा, ठीक है।
और मेनली ये क्या होता है, एक एक्वाटिक प्लांट है ये, ठीक है। और इसके अंदर ना इनसाइड इट हैव ब्लू ग्रीन एल्गी, इनसाइड इट हैव ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट अगर इसमें अपनी बात करें तो देखना तमिलनाडु में, यहाँ पर तमिलनाडु में एजोला माइक्रोफाइला जो है वो यूज होता है। और वहीं अगर अपने बात करें इसकी कैपेसिटी की कि कितनी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, तो ये अराउंड 40 to 50 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। वहीं बात करें इसके यूजेस की, तो देखो भी इसका यूज कैसे होगा। तो एजोला की जो क्वांटिटी अपने को यूज करनी है वो करनी है 1 to 2 टन पर हेक्टेयर। और प्लस इसके साथ ध्यान रखना 10 kg जो है अपने को SSP भी ऐड करना पड़ेगा, सिंगल सुपर फास्फेट। और इसका ये जो मैंने यूजेस बताया ये तब करना है अपने को जब अपने एजोला जो है वो यूज, मतलब जो सीडलिंग्स होती है वो प्लांट नहीं किया, प्लांटेशन जब तक नहीं हुआ, प्लांटेशन के बाद में अगर इसको यूज करना होगा ना, या प्लांटेशन के साथ साथ अगर इसको यूज करना होगा, तब इसकी क्वांटिटी थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर कितनी होगी 0.5 to 1 टन पर हेक्टेयर। एंड इसमें लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये प्लांट्स होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं और सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपने फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब ध्यान रखना इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो नाइट्रोजन में फास्फोरस है या फास्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको प्लांट को अवेलेबल करवाना। और इसमें मेनली अगर अपने बात करें तो जैसे स्यूडोमोनास हो गया, बेसिलस हो गया, या बेसिलस पॉलीमिक्सा हो गया, या बेसिलस सर्कुलांस हो या स्यूडोमोनास ट्राइटा वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि एक्टिव होते हैं। वहीं अगर अपने बात करें फर्टिलाइजर्स में, तो फर्टिलाइजर जो फास्फोरस फिक्सेशन करते हैं उसमें दो है। पहला है उसमें माइकोराइजा, क्या होता है माइकोराइजा। देखो भाई माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा जैसा कि मैंने बताया कि ये फास्फोरस जो है वो फिक्सेशन का काम करता है। दूसरा अगर अपने बात करें तो ये क्या होता है, एक फंगस होता है, क्या होता है फंगस होता है एक तरह का। और ये आ जाता है एंटर दी प्लांट रूट्स, प्लांट रूट्स के अंदर एंटर करता है और फिर जो है वो सिम्बायोसिस विद प्लांट रूट के साथ ये क्या करता है, सिम्बायोसिस अपन कह सकते हैं कि डेवलप कर लेता है। और सिम्बायोसिस जैसे डेवलप होता है ये प्लांट को क्या करता है, फास्फोरस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइकोराइजा या वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। देखो भाई क्या होता है ये आर्बस्क्यूलर वास्क्यूलर माइकोराइजा, ये भी बेसिकली क्या है, फास्फोरस फिक्सेशन का ही काम करता है। क्या काम है इसका भी, फास्फोरस फिक्सेशन। और मेन इसकी जो होती है 5 स्पीसीज होती है, वो कौन कौन सी हैं वो देखो भाई, स्पीसीज होती है इसकी 5, वो कौन सी वो देखो।
ग्लोमस जिग्स्पोरम, नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने एंडोगन, एक्युलोस्पोरा, और लास्ट इसके अंदर जो आती है वो आती है अपने स्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो ध्यान देना कि इसके अंदर है ना बेसिकली छोटे छोटे ऐसे बलून्स टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बैलून्स टाइप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपने एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल बीज के जैसे होते हैं, जैसे कि लार्वा होता है, लार्वे में अंडे होते हैं, इसी तरह ये जो बलून्स होते हैं, बलून्स के अंदर जो है स्पोर्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? स्पोर्स। और ये जो बलून है ना, इसको क्या बोला जाता है? स्पोरोकार्प्स। ये जो स्पोर्स भरे होते हैं, अब स्पोर्स क्या होता है बेसिकली, आप ये मानो कि जैसे लार्वे में अंडे होते हैं, वैसे ये जो स्पोरोकार्पस है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो जैसे ही ये बलून्स फटते हैं, यानी ये बलून्स जब बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं, और आसपास की जितने भी रूट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। और जहाँ पर भी ये स्पोर्स जाएंगे, जैसे मान लो रूट्स वगैरह होती है, ज़्यादातर रूट्स में जाकर ये क्या हो जाते हैं? उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, या उसके अंदर अपना जो जगह बना लेते हैं। और वहीं ध्यान रखना कि जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, उसने भी अपने कह सकते हैं कि फंजाई की एक वैरायटी तैयार की है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिंक। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिंक बोला जाता है। और इसका जो प्राइस है वो होता है लगभग 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये इसका क्या रहता है? प्राइस रहता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं जैव फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स। तो वो अपने पहले ही कर चुके हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है क्वेश्चंस फॉर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखना इसमें क्या क्या होता है। पहला, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते टाइम क्या क्या क्वेश्चंस रखने चाहिए। पहला तो ये कि ज़्यादा ओल्ड ना हो, नॉट ओपन फॉर लॉन्ग। जब अपने को यूज़ करना है तभी इस पैकेट को खोलना है, अदरवाइज इसको नहीं खोलना है। और बाई फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ये अपने जो है वो बाय कर लिया, क्योंकि इसमें हो सकता है कि फेक हो, या उसकी जो इफेक्टिविटी है या रिएक्टिविटी उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इसके ऊपर जो रेगुलेशंस वगैरह लिखे होते हैं जो वो अपने को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इसके डू नॉट मिक्स विद केमिकल्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना, यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर है या अपने कहें कि केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें अपने तो भी ये होते हैं कि ट्रीटेड सीड्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, कि हो सकता है अपने जो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो ज़्यादा ट्रीट कर दिए अपने, और कुछ जो है वो बच गए, तो जो बचे हुए सीड्स हैं उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर अपने बात करें ना कि अगर सॉइल एसिडिक है, सॉइल क्या है? एसिडिक। तो एसिडिक सॉइल में ध्यान रखना कि ये जो ट्रीटमेंट अपने कर रहे हैं उसको पहले लाइम से भी जो है वो ट्रीट कर लें अगर एसिडिक सॉइल है तो। और अगर बेसिक सॉइल है, सॉइल क्या है? बेसिक सॉइल है, तो उसको अपने किस से ट्रीट कर लेंगे? जिप्सम से ट्रीट कर लेंगे। किनको? सीड ट्रीटमेंट जब कर रहे हैं कल्चर में तो उसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर देंगे? लाइम।
और अगर बेसिक सॉइल है तो क्या ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जिप्सम। और एक और बात ध्यान देना कि अपने बात की थी कि अपने सॉल्यूशन बना रहे हैं कल्चर से, तो जिस वाटर का अपने यूज कर रहे हैं, वाटर शुड बी स्टरलाइज्ड। वाटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। विदाउट स्टरलाइजेशन वाटर यूज नहीं करना चाहिए। और अगर जो अपने यूज कर रहे हैं केमिकल से और उसके अंदर अगर क्या हो, मर्क्यूरी हो, क्या हो, मर्क्यूरी अगर हो, देन 2x क्वांटिटी of culture is used, 2x quantity of culture is used। सो ये कुछ एक जो अपने क्वेश्चंस है जो अपने को रखनी है। नेक्स्ट इसमें बात आते हैं, वो आती है ग्रीन मैन्योर की। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो क्या आता है, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर अगर अपने इन जनरल देखें तो और कुछ नहीं है एक्सेप्ट क्रॉप वेस्ट। ग्रीन मैन्योर बेसिकली क्या होते हैं, भी ऐसी मैन्योर्स जो इसीलिए ग्रो की जाती है ताकि उनको मिट्टी के अंदर क्या किया जा सके, मिक्स कर सके, सोइल के अंदर मिक्स कर सके, जिसके कारण वो क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। अब ग्रीन मैन्योर के एग्जांपल देखो, जैसे डेंचा हो गया, क्या हो गया, डेंचा हो गया, या उसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो ल्यूमिन्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स का जो क्रॉप वेस्ट होता है वो भी अपने यूज कर सकते हैं। मेन इसमें जो आता है वो आता है इसकी एक तो प्रॉपर्टीज ग्रीन मैन्योर की, और दूसरा इसके अंदर आता है यूजेस, भी मेथड ऑफ यूजेस, मेथड ऑफ यूजेस। अब क्या क्या होते हैं मेथड, दो मेथड होते हैं देखो, एक तो हो गया इसमें C2 मेथड, इन सीटू मेथड, इन सीटू मेथड, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है ग्रीन लीफ मैन्योर। क्या आता है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। अब क्या होती है मेथड देखो, इन सीटू मेथड क्या होता है कि इन सिचुएशनल, कि जिस खेत में अपने को या जिस पर्टिकुलर फार्म में अपने को ग्रीन मैन्योर देना है उसी के अंदर क्रॉप ग्रो करेंगे, उसी के अंदर सेम फील्ड एंड सेम ग्रीन मैन्योर, जिस फील्ड में अपने ग्रीन मैन्योर को ग्रो किया है उसी फील्ड के अंदर अपने क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। जिस खेत में उसको ग्रो किया उसी खेत में जैसे थोड़े टाइम के बाद वो बड़ी हो जाएगी ग्रीन मैन्योर, उसी खेत के अंदर या उसी फार्म के अंदर उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये मेथड होता है इन सीटू मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका डेंचा हो गया, गवार वगैरह जो होते हैं। और दूसरा अगर अपने बात करें ग्रीन लीफ मैन्योर, अब इसमें क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि जिस खेत में अपने ग्रीन मैन्योरिंग करनी हो वहां पर पानी ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो क्या करते हैं कि अपने किसी एक खेत में उगाते हैं, ग्रोन इन वन फील्ड एंड यूज्ड इन अनदर फील्ड। तो ये दो मेथड हो गए किसके, ग्रीन मैन्योर के। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन मैन्योर या स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्रीन मैन्योर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन मैन्योर, तो इसमें कुछ एक बातें हैं वो ध्यान रखना। पहला, शुड बी चीप, सस्ती होनी चाहिए, फिजिबल, इजीली क्या हो, अवेलेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो मिले ही ना मार्केट में, फिजिबल इन द सेंस कि वो बहुत इजीली क्या हो, अवेलेबल हो,
क्या हो, अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोर लीव्स। मोर लीव्स, लीव्स क्या होनी चाहिए उसके अंदर, ज़्यादा होना चाहिए। ग्रो इन ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स, यानी कहने का मतलब कि क्रॉप्स ऐसी होनी चाहिए ग्रीन मैन्योर की जो कम पानी में भी ग्रो कर सके। नेक्स्ट, फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रो, ये ऐसा ना हो कि अपने ग्रीन मैन्योर लगा रहे हैं, वो ग्रीन मैन्योर होने में 4 महीने लगा रही है, इतने में तो फसल तैयार हो जाएगी। तो वो उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए ग्रीन मैन्योर की, वो क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। और लेग्यूमिनस हो तो बढ़िया है, और भी लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस हो, ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल, ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल, कि जो कम फर्टिलिटी वाली सॉइल है उसमें भी ये अच्छे से ग्रो कर सके। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें देखो क्या होगा, लेस केयर रिक्वायर्ड, लेस केयर रिक्वायर्ड मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अपने को जो देखभाल करने की ज़रूरत ना हो, खुद से क्या ग्रो हो। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है किसकी, ग्रीन मैन्योर की। नेक्स्ट अपने जो आता है वो आते हैं ऑयल केक्स। क्या आते हैं, ऑयल केक्स। देखो भाई क्या होते हैं भाई ऑयल केक्स, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है ऑयल से रिलेटेड है ये। ऑयल केक्स क्या होता है, वेस्ट लेफ्ट आफ्टर, वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द extraction of oil from oil seeds, ऑयल सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो रह जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑयल केक्स कहते हैं। और ध्यान रखना ऑयल केक्स में जो होता है मोर नाइट्रोजन होता है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्मी कंपोस्ट, एज कंपेयर टू कंपोस्ट। ठीक है, क्योंकि मेनली क्या होता है इसमें सिर्फ फैट ही निकला होता है, फैट निकला होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन है तो साथ में फास्फोरस और पोटास भी होंगे। अब बात करें ना अगर अपने टाइप ऑफ ऑयल केक्स की, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो एडिबल होती है और दूसरा नॉन एडिबल केक्स, नॉन एडिबल, नॉन एडिबल। एक तो एडिबल हो गया, दूसरा नॉन एडिबल हो गया। अब एडिबल कौन सी हैं, जो एनिमल ईट्स, जो एनिमल्स खाते हैं वो तो क्या हो गया एडिबल, और नॉट ईटन बाय एनिमल्स, नॉट ईटन बाय एनिमल्स। ठीक, वो क्या होती है, नॉन एडिबल। एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना, जो एनिमल एडिबल है वो जैसे सीज में हो गया, तिल जिसको बोल सकते हो आप। उसके अलावा कोकोनट, कोकोनट के अलावा अगर अपने इसमें देखें तो हो सकता है ग्राउंड नट हो गया, वो भी इसमें यूज कर सकते हैं, ग्राउंड नट हो गया, या मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड वाली हो गई, या कॉटन सीड जो होता है ये हो गई, ग्राउंड नट हो गया। ये एडिबल ऑयल केक्स हैं। वहीं अगर अपने बात करें नॉन एडिबल की, तो देखो महुआ, क्या हो गया, महुआ, नीम, उसके अलावा जो होता है इसमें करंज जो होता है, करंज, ये सारी क्या हैं, नॉन एडिबल्स में आते हैं।
नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है यूजेस। यूजेस कैसे होता है इनमें, तो ध्यान रखना यूजेस में एक बात, लेस फैट और ऑयल इक्वल्स टू मोर इजी डीकम्पोजिशन, मोर इजी डीकम्पोजिशन। फिर जितना कम उसमें ऑयल या फैट रिमेनिंग रहेगा वो उतनी ही इजी क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। एक और बात, ड्राई होनी चाहिए, फिर पाउडर्ड, ड्राई एंड पाउडर्ड, फिर स्प्रिंकल्ड एंड मिक्स्ड इन सॉइल, मिक्स कर देंगे स्प्रिंकल करके। और उसके बाद में मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर डीकम्पोजिशन, मॉइस्चर होता है वो नेसेसरी होता है डीकम्पोजिशन के, अदरवाइज वो डीकम्पोज नहीं होगा। तो ये इसके यूजेस हो गए कुछ है। ये ड्राई करना है, उसको सुखाना है, फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मिक्स कर देंगे और सॉइल के अंदर स्प्रिंकल करके, फिर उसके अंदर जो मॉइस्चर भी होना चाहिए, सूखे में ये जो डिकम्पोज नहीं होगी। और एक और बात ध्यान रखना, जितना कम या जितना लेस फैट या ऑयल कंटेंट उसके अंदर होगा उतनी ही ईजी वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। और लास्ट इसमें अपने कह सकते हैं भाई कैसे करने हैं उनको यूजेस, वो तो मेथड हो गया। और करना कैसे है, वही बिफोर 10 to 15 डेज, जब अपने को प्लांटिंग जब कर रहे हैं या प्लांटेशन जब कर रहे हैं, तो प्लांटेशन से 10 से 15 दिन पहले इसका यूज करना है। और जो महुआ होता है, महुआ ऑयल केक इज बेस्ट फॉर wheat because it has a compound called सैपोनिक, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि जो अपने वीट होता है, वीट के लिए महुआ की जो ऑयल केक होता है वो बेस्ट रहता है। रीजन उसका क्या है कि इसके अंदर सैपोनिक नाम का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। और एक ये तो जो मैंने मेथड बताया ये बिफोर प्लांटेशन है, आफ्टर प्लांटेशन भी हो सकता है। आफ्टर प्लांटेशन वही है कि जैसे जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद में उसके अंदर ऑयल केक जो है वो मिक्स कर देंगे। तो ट्यूबर वाली जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेनली ये कब यूज़ किया जाता है कि जब उनको कवर कर रहे होते हैं ना अपने सॉइल से, तो उसके अंदर ये ऑयल केक जो होता है पाउडर करके मिक्स कर दिया जाता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि 6 नंबर होल्ड करता है। हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा लंबा खिंच गया हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, मतलब जैसे मैंने पढ़ाया, आप बुक लेकर बैठो साथ में, आपके ये मान के चलो कि 6 नंबर है ना, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, आएंगे तो पूरे 6 अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। तो अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो अपने थोड़ी बहुत और जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, एमसीक्यूज वगैरह, तो उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज है वो भी ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के कंटेंट आते रहते हैं। और हमने जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक 4 पेपरों का सेट है उसमें, और इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू हो गए या फिलअप्स वगैरह, वन लाइनर और जो बड़े क्वेश्चन है उनका एक सेट बनाया है, तो वो भी आप जो है परचेज कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। और ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप के अंदर वो जो टेस्ट है वो अच्छे से काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।